Hi everyone, I'm again here with new chapter of civics, chapter number 22, how do state governments work. Okay, in this chapter I'm going to explain about the quasi-federalism in India, state executive, state legislature, function of the state legislature. Okay. We have studied in the previous class that our government works at three levels. Isn't it? What are this level? Local level, state level and national level. We have also studied the government at local level in detail in standard 6th. Okay. Now, in this standard, we are going to learn about the state government in detail. And what is the state government? The government at the state level is called the state government. This government deals with the issues related to an entire state. Tell me, in which state you are living? You are living in Gujarat state. So whatever the things are, issues are, deals with the government, your government, state government, that is related to your गुजरात स्टेट. ठीक है, आपके गुजरात स्टेट से रिलेटेड आपके गवर्नमेंट जो भी इश्यूज के रिलेटेड डील करते हैं वो उस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट से ही रिलेटेड होगा. ठीक है. And the government at every level, and state government is every level has three organs. Central government is also same and state government is also there same, that is legislature, executive and judiciary. In this chapter we are only discuss about the state executive and state legislature. Okay. Now you can see here about a chief minister of Sikkim whose name is Pawan Chamling, and he is the longest serving minister of Indian state, that is Sikkim. Till 2019, he was the Chief Minister of Sikkim for more than 24 years. Now, come to the at a glance state government. State government has three organs, that is the executive, legislature and judiciary. We are discussing in this chapter about the executive and legislature. Executive head is governor. Governor appoint chief minister, and chief minister make a council of ministers. In council of ministers there is cabinet ministers which has some related portfolio they are having, and according to they administrate the state minister and deputy minister. These are the state minister and deputy minister assist cabinet ministers. Next is legislature. Legislature has two houses, like central there is two houses like that. Similar legislature has two houses, Vidhan Sabha or Vidhan Parishad. Vidhan Sabha is presiding by speaker and deputy speaker, and the member of the legislature is known as the member of legislative assembly. They are directly elected by the people. And similarly, Vidhan Parishad or legislative council is presiding by the chairperson or deputy chairperson, and the members of the Vidhan Parishad is known as the members of legislative council. They are indirectly elected by the elected people or behalf of the elected people. Okay. Now come to the some question is there.
warm up exercise. Name a governor of any state in India. Now the UP, there is a big events done in UP, that is Ram Mandir Pujan. That is here in UP state. Who is the governor? That is Anandiben Patel. Second question is, name in a female chief minister of any state in India. So recently no one is a female chief minister, but before Vijay Rupani, our state chief minister, there was Anandiben Patel, lady chief minister was there, and similarly Jayalalitha was there in Tamil Nadu. ठीक है. Name any two important bills being debated in the assembly for your state. So we are living in which state? Gujarat state. So I am going to explain about that two bill, that is Gujarat electricity duty bill and Gujarat stamp bill, which is propose a hike in stamp duty. So these two bill discussed in assembly, and afterwards it became a law. We will discuss about this, how a bill became a law afterwards, after this completion of this chapter. Now, our country is governed at three levels: local, state and central level. In this chapter, we will study about the working of the government at the state level. Earlier discussed, our constitution describes India as a union of states. Okay, it has 28 states and 9 union territories. The government formed in each state is known as the state government. Okay. The legislative, executive and the judiciary with clearly defined function comprise the essential structure of the state government. Okay. Legislature, judiciary and the executive are the three organs of the state government. The focus of this chapter will on executive and legislative branches of the government. Here, next paragraph is quasi-federalism in India. Quasi-federalism in India, as we are knowing that India has a federal system of government. It means there is a central government and also there is a state government. Central government they works according to in their jurisdiction, and state government works according in their jurisdiction. Means our country is a big, large population is very large, so it is not possible to administer the whole country in through central. So there, that's why the central is divided into states, and state governments is according to the regional. State is divided, and state governments took deals with the issue of the state. Okay. So here word is coming quasi-federalism in India. Why it is called quasi-federalism in India? The Indian Constitution details the extent to which a state government can exercise its powers. While the Constitution allows the state manage their internal matters according to their requirements, it insists upon the unitary nature of the country. India is unique in this respect, as it supports a quasi-federal system of governance. Some of the features are, कहा जाता है कि ये पूरी तरह से फेडरल सिस्टम नहीं है, कुछ बातें एज अ यूनिटरी नेचर जो है, यूनिटरी सिस्टम जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, यानी कि सेंट्रल के भी कुछ जुरिडिक्शन इन स्टेट पर होते हैं, कुछ लॉज जो है सेंट्रल के वो स्टेट को फॉलो करने पड़ते हैं बहुत। और यदि सेंट्रल चाहे तो स्टेट को डिसॉल्व कर सकता है, या इस तरह के जो है वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो फॉलो होते वो भी इनके साथ इस गवर्नमेंट के साथ फॉलो होता है। तो इसलिए इसे कहा गया है क्वासी फेडरलिज्म। मीन्स आधे इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट है, सॉरी
और आधे जो वर्क्स हैं वो फेडरल सिस्टम के हैं। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जो कि जिसके कारण इसको क्यों कहा जा रहा है क्वासी फेडरल। द स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू सेंट्रल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स इश्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दे हाउएवर हैव द ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजन इन मैटर ऑफ लोकल इंटरेस्ट। यदि कोई भी ऐसा है सेंट्रल अथॉरिटी है, उनके पास एक कोई ऐसा इश्यू नेशनल इंटरेस्ट का आएगा तो जो स्टेट्स को है किसकी बात माननी है, सेंट्रल की, ठीक है। लेकिन फिर भी जो डिसीज़न है मैटर्स, जो डिसीज़न मैटर्स है अपने लोकल इंटरेस्ट को देखकर ही जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। नो स्टेट हैज़ द पावर टू सेसिड फ्रॉम द इंडियन यूनियन। और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये नहीं पावर होता है कि वो अपने आप को इंडियन यूनियन से अलग कर सके, ठीक है। सेंट्रल जा सकती है, सेंट्रल कर सकती है कि वो स्टेट को दो भाग में बांट सके या स्टेट का कुछ अपना नाम दे सके, सेंट्रल के पास ये अधिकार है। लेकिन स्टेट के पास ये अधिकार नहीं होता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरलिज्म। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन क्वासी फेडरलिज्म इसलिए कहा जाता है कि इसकी कुछ बातें ऐसी हैं जिसको सेंट्रल अपने ऊपर हैंडल करता है, सेंट्रल उन स्टेट को हैंडल करता है। सॉरी। Similarly to central government, the state government also relies on three organs: the executive, the legislature and judiciary to help in running the government machinery. गवर्नमेंट मशीनरी को रन करने के लिए भी जैसे सेंट्रल में 3 ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही स्टेट में भी होते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी. नेक्स्ट, द governor is the executive head of the state, although the real power lies with the chief minister and the council of ministers. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही इसमें भी क्या होता है कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो रियल पावर किसके हाथ में होता है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. जैसे सेंट्रल में जो रियल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, बट रियल पावर जो होती है, पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में और कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथ में. उसी तरह स्टेट में भी सेम सिचुएशन होता है. Next, the state legislature is composed of the legislative assembly or Vidhan Sabha and the legislative council or the Vidhan Parishad. अब यहाँ पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को क्या कहा गया है, इट इज़ composed of 2 houses. जैसे central is parliament is composed of 2 houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha is lower level, lower house, and Raj Sabha is upper house. Similarly, in the state legislature, it has 2 houses, Vidhan Sabha or Legislative Assembly and the Legislative Council or Vidhan Parishad. Okay. Now next is the High Court heads the state judiciary. अब state judiciary भी है इनका एक ऑर्गन. इसमें हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, और ये हाई कोर्ट एवरी स्टेट में हाई कोर्ट नहीं होता, 2 और 3 स्टेट में मिलाकर एक हाई कोर्ट होता है. तो इस तरह से वी हैव सीन दैट दीज आर द थिंग्स दैट इज फीचर्स of quasi-federal system of the governance, that is suppose the quasi-federal system. Okay. Now come to the state executive. The executive are in the part of the government that is responsible for the daily administration of the state. This body executes the law of the state through various functionaries such as governor, the chief minister and the council of minister. अब एडमिनिस्ट्रेशन रन करना स्टेट में तो वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द स्टेट एग्जीक्यूटिव. और स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, गवर्नर. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज फॉर्मली वेस्टेड इन द गवर्नर. ठीक है. He or she is only the nominal head of the state. Means nominal head means नाम मात्र का वो स्टेट का वो हेड होता है. Constitutionally he is the head of
she is head of the state. अब the governor is appointed by the president. Okay, sorry. The governor holds office during the pleasure of president. This means that though the governor is appointed for 5 years, he or she can be removed earlier by the president. This can only happen in cases of glaring misconduct. A governor's term can be extended as well. Means ये प्रेसिडेंट के हाथ पर अधिकार होता है कि वो गवर्नर को अपॉइंटमेंट को हटा भी सकता है और साथ में साथ उसके टर्म को एक्सटेंड भी कर सकता है. ठीक है. अब नाउ द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर. व्हाट इज द क्वालिफिकेशन शुड बी देयर. फर्स्ट, गवर्नर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. उसका इंडिया का होना चाहिए. ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स. ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. मीन्स उसको वो यदि गवर्नमेंट के पोस्ट में है तो उसे कोई अदर्स प्रॉफिट के पोस्ट में नहीं होना चाहिए उसके अलावा. ही और शी मस्ट नॉट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और साथ साथ उसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर नहीं होना चाहिए. ओके. And next is she must not be a resident of the state which he or she has been appointed as governor. यदि मान लिया कि गुजरात स्टेट में किसी को गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो जो गवर्नर है वो पर्टिकुलर स्टेट गुजरात स्टेट का नहीं होना चाहिए. सपोज इस समय यूपी के उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है. आनंदीबेन पटेल. अब आनंदीबेन पटेल शी इज़ नॉट द रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, शी इज़ द रेसिडेंट ऑफ गुजरात. तो इस तरह से ही जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट है तो उसका गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट से नहीं होना चाहिए. ठीक है. रेसिडेंट नहीं होना चाहिए. नाउ द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर. क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन है गवर्नर के. फर्स्ट, executive powers. The governor appoints the chief minister who is the leader of the party which has a majority in the state assembly. सबसे पहला काम वो किसको अपॉइंट करता है. चीफ मिनिस्टर को, और जो कि लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का स्टेट असेंबली में. ही अपॉइंट्स द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. साथ ही साथ वो अदर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर्स. अब उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं. द गवर्नर हैज़ द पावर The governor has the power to summon and prorogue the session of the state legislature as well as to dissolve it. उसके पास ये पावर होता है कि उसको समन कर सके और उसको डिसकंटिन्यू कर सके सेशन को, स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन को, और साथ ही साथ उसको डिसॉल्व भी कर सके. ऐसा उसके पास पावर होता है. एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू रिसीव द गवर्नर एसेंट. कोई भी बिल पास होता है तो उसमें बाद में उसे किसके पास जाना होता है, उस बिल को गवर्नर का, और गवर्नर के सहमति से ही वो बिल पास हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं. यदि गवर्नर ने उसको ना कर दिया तो वो बिल नहीं पास हो सकता. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, है ना. क्या होता है, कोई भी बिल पास होता है, फर्स्ट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू रिसीव द गवर्नर एसेंट. स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर गवर्नर एसेंट की उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज़, on certain occasions when the state legislature is not in session, the governor can issue orders called ordinance. These ordinances are submitted to the state legislature in its next session. The legislature may be or may not approve to it. अब सब
कोई सर्टन ओकेज़न होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन में नहीं होती है, बंद रहता है वो उनका पीरियड, तो उस समय गवर्नर कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो ऑर्डिनेंस सबमिट करा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर इन द नेक्स्ट सेशन, मतलब उसको उस इशू को पास कर सकता है। वो ऑर्डिनेंस है, जो ऑर्डर है वो इशू को पास कर सकता है। वैसे कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऑर्डर को गवर्नर पास कर सकता है। उसको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंसेस। एंड दीज ऑर्डिनेंसेस आर सबमिटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर इन द नेक्स्ट सेशन, और द स्टेट लेजिस्लेचर in this session may be approve or not to approve of it. अब judicial power क्या है? The governor has the power to grant pardon or reduce a punishment or sentence passed by the courts under the state law. अब उन गवर्नर के पास स्टेट लॉ के अंतर्गत गवर्नर के पास कोई ऐसी केसेस आते हैं उसके पनिशमेंट को रिड्यूस करने के लिए या पार्डन के लिए, क्षमा याचना के लिए, तो उस पर गवर्नमेंट अपना, उसके पास यह पावर होता है कि उनको क्षमा दे सके। फिर है डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स मीन्स विवेक के आधार पर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो विशेष अधिकार होते हैं। वो क्या है? द गवर्नर हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स विच ही और शी कैन यूज़ on his or on discretion in special situation। कुछ स्पेशल सिचुएशन में गवर्नर के पास ये अधिकार रहता है कि वो डिसीजन ले सके। ठीक है। द नेक्स्ट, द गवर्नर कैन ऑल्सो रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द constitution. On the basis of the report, the president can suspend or dissolve the state legislature and the state administrated through his or her representatives. अब क्या होता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भी कर सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रहा। यदि ऐसा सिचुएशन होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट सस्पेंड और डिसॉल्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, एंड वहाँ पर गेट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू हिज और रिप्रेजेंटेटिव्स, और वहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नर प्रैक्टिकली रन्स द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आई बात समझ में कि कुछ शिकायत करने पर जो गवर्नर है उनकी शिकायत पर प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। ठीक है। और ऐसे टाइम में जो प्रैक्टिकली जो स्टेट है उसको रन करने का अधिकार किसके पास आ जाता है? गवर्नर के पास। हाँ। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर कौन होता है? जो मेजॉरिटी पार्टी आती है उसके हेड को चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज एक्चुअली रन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आफ्टर द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली, द गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी that has won the majority of seats in the house to form the government. The leader of the party becomes the chief minister and has term of 5 years. अब असेंबली इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसको गवर्नमेंट इनवाइट करती है फॉर मेकिंग अ गवर्नमेंट। हाँ, Government invites the leader of the party that has won the majority of seats in the house to form the government. ठीक है। अब क्या होता है? पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका हेड क्या बन जाता है? चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर के क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं? द चीफ मिनिस्टर प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ हिज कैबिनेट। द गवर्नर
देन अपॉइंट्स द मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। अब चीफ मिनिस्टर क्या करता है, जो उनको कैबिनेट में जिन लोगों को लेना उनकी लिस्ट तैयार करता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती हैं उन मिनिस्टर्स को। नेक्स्ट द चीफ मिनिस्टर कैन रिमूव एनी मिनिस्टर एट एनी टाइम। अभी चीफ मिनिस्टर के पास भी ये हक होता है, वो किसी भी मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो डिसाइड द एजेंडा फॉर मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रिसाइड ओवर इट्स मीटिंग। जो चीफ मिनिस्टर है एजेंडा मीटिंग्स की तय कर सकती हैं, हाँ, और इस मीटिंग को की अध्यक्षता भी कर सकती हैं। He or she also coordinates the work of different departments of the state government. अब जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट के, उनके बीच कोऑर्डिनेट भी करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू मेंटेन गुड रिलेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ मिनिस्टर की कि वो रिलेशनशिप गुड रखे विद others. Now, as the head of legislature and the council of ministers, the chief minister holds the responsibility for the government of the state. If a vote of no confidence is passed against the government in the assembly, the entire ministry has to resign. अब ये क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी में जो होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म तो कर लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से जो मेजॉरिटी पार्टी के कुछ हैं जो फेवर में नहीं होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, और वो ऐसे केस में गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, और यदि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट दिया तो क्या हो जाती है कि एंटायर असेंबली को क्या होता है, रिज़ाइन देना पड़ता है। ठीक है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द टीम ऑफ मिनिस्टर हु असिस्ट द चीफ मिनिस्टर इन डिस्चार्जिंग द गवर्नमेंट्स ड्यूटीज। Its member must not be more than 15% of the total number of members of the legislative assembly. A minister should also be member of the legislative assembly or become one within 6 months or appointed as a minister. यदि कोई minister बनते हैं तो उसे 6 months के अंदर legislative assembly का member हो जाना पड़ता है। ठीक है। The Council of Ministers is collectively and individually responsible to the Legislative Assembly of their section. There are 3 categories of Council of Ministers. First, Cabinet Minister. Second, Minister of State. And third, Deputy Minister. A Cabinet Minister holds the overall charge of one more portions of 40 portfolios and may be assisted by the Minister of State or the Deputy Minister. ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो अपने अधिकार में ले सकता है, और उनको हेल्प करने के लिए कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। द कैबिनेट मेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज। ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लेजिस्लेचर एट टाइम ऑफ लॉ मेकिंग, हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एंड फॉलोज डायरेक्शन गिवन इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जो कैबिनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन और पॉलिसी भी मेक करती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ लॉ मेकिंग, हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट मेकिंग। बजट मेकिंग करने में भी ये हेल्प करते हैं, and it also follows the direction given it by the central government. Now come to the state legislature. तो अभी हमने देखा जो मशीनरी थी, एग्जीक्यूटिव मशीनरी, that is government and their functions. Okay.